Welcome back, friends. So, till now, what we have discussed, till now, we have discussed that first order equation represented by this is T half of first order, independent of the initial concentration and initial pressure. This is the rate law equation for the first order, that is K equal to 2.303 by T log A naught by A, or it may be represented by this equation also. Similarly, for zero order, T half is A naught by 2K and value of K is A naught minus A by T. So, this is how to calculate K in first order, and that is in zero order. Okay. And in case of second order, this is the value Kt equal to A naught minus A by A naught by A. So, T half equal to 1 by K A naught. Are you sure about that? So let's move forward and discuss some problems on that. Sure? Now let us suppose a gas A mole has been given to you and it transforms into B mole plus C mole. So it means gas A dissociate into gas B and gas C, both are 1 to 1 mole. So it follows what? It follows a first order rate kinetic. It follows what? First order kinetic. Okay. Now due to that, what would happen? Now due to that, you can say P naught A or P naught is the initial pressure. So initially when time equal to 0, initial pressure of B is 0, initial pressure of C is 0. Now when time is equal to T, let us suppose X pressure of A has been reduced. So what will happen? X will be the pressure of B and X will be the pressure of C. Taken into account that pressure proportional to number of moles. Okay? Are you sure? Now if you ask what is P total, that is PT, after time T, the answer will be partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C. So what is partial pressure of A equal to? It is P naught minus X. Partial pressure of B, it is X. Partial pressure of C, that is also X. So this minus and this plus will cancel out each other. Answer will be P naught plus X. So pressure at T will be equal to P naught plus X. So value of X will be P total minus P naught. Okay. So what is P total? Total pressure after time T. Okay. So now you know that. Now putting that value of X in what? Put value of X in P naught minus X. Why? Just to get the value of pressure of A at time T. Okay. So what is the answer? P naught minus X equal to P naught minus. Now in place of X, what will you put? You will put value of 1. X will be P total minus P naught. So answer will be what? P naught minus P total plus P naught. It comes out to be P naught minus P total. So what will happen? So in place of P naught minus X, you can write this value or not? Yes, I can write this value. Sure? Clear? Clear understood now? Now if you go by the rule, then what is the answer? The answer of K would be 2.303 T log
initial concentration by final concentration. Now in this case, what is initial by final equal to? It is P naught by P naught minus x. So in place of P naught minus x, what will you do? आप P नॉट माइनस एक्स की क्या करेंगे? P नॉट माइनस एक्स की वैल्यू लगा देंगे. क्या है? 2P नॉट माइनस पी टी. चेक कीजिए ये वैल्यू. तो ये क्या आ गया? दोबारा समझिए. अगर A मोल ऑफ गैस है, इट ट्रांसफॉर्म इनटू B 1 mole of B and 1 mole of C. That how would you represent that equation? पता लग गया बेटा आपको ये बात? प्रोवाइड दैट जो डीकम्पोजिशन ऑफ ए है फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर. डीकम्पोजिशन फॉलोज व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. Are you sure about that? Clearly understood now? Sure? Now look at the example of N2O5 gas decomposed to NO2 plus half O2. Now how would you represent that equation here in this case? Everyone knows that answer would be 2.303 K log initial pressure of N2O5 divided by final pressure of N2O5 at time t. Now how would you get that? अब ये कैसे लेंगे आप? ठीक है, आप क्या करेंगे? आप इसको लिखिए दोबारा से कि हमारे पास क्या है, N2O5 जो गैस है वो डिसोसिएट हो रही है 2 moles ऑफ NO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2. तो मान लीजिए ये P नॉट है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0. तो ये सिनारियो कब है? जब T 0 है. अब T की वैल्यू T के इक्वल आ गया. तो मान लीजिए इसमें से x मोल डिसोसिएट हुआ तो कितना हो गया? 2x. और यहाँ पे क्या आ गया? x/2. तो कोई आपसे पूछे P टोटल क्या है एट टाइम t, तो बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द 3 गैसेस. तो पार्शियल प्रेशर कितना इसका है? P नॉट माइनस एक्स. O2 कितना है? x/2. और O2 कितना है? 2x. आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई. क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? श्योर. अब इसको आगे आप क्या देखेंगे? तो ये P नॉट में से चलेगा. कितना आंसर आ गया यहाँ पे? दोबारा चेक कीजिए. P नॉट माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 2x. तो देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है किसके इक्वल आ गई यहाँ पे? तो 2x में से x गया कितना? x. तो x प्लस x/2 कितना आ गया यहाँ पे? प्लस 3x/2. आंसर क्या आ गया? 2P नॉट प्लस. ओके, नाउ अब आप इसको ऐसे लीजिए. PT माइनस P नॉट इज इक्वल टू 3x/2. क्रॉस में लीजिए. कितना हो गया? 2PT माइनस 2P नॉट बाई 3 इक्वल टू x. शुरू अबाउट दैट. अब इस x की वैल्यू करेंगे. इस x की वैल्यू को करेंगे आप पुट x इनवर्ट. x को कहाँ पुट करेंगे? चेक कीजिए यहाँ पर P नॉट माइनस एक्स को. इन P नॉट माइनस एक्स. तो P नॉट माइनस एक्स से कितना आ गया? ट्वाइस PT माइनस 2
पी नॉट बाई 3। थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कितना आंसर आ गया यहाँ पे? 3p नॉट माइनस 2pt प्लस 2p नॉट बाई 3। तो p नॉट माइनस x का आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 5p नॉट माइनस 2pt डिवाइड बाय 3। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, अब ये जो वैल्यू है ये आपके काम आएगी फाइनल प्रेशर के लिए, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? K इक्वल टू 2.303 T log इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर क्या था? P नॉट, फाइनल क्या है? P नॉट माइनस एक्स। अब P नॉट माइनस एक्स की वैल्यू चेक कीजिए, क्या है? चेक करो यहाँ पे, ये वैल्यू है 5p नॉट बाय 2p टोटल बाय 3। तो इक्वेशन क्या आ गई? फाइव पी नॉट माइनस 2pt डिवाइड बाय 3 ऊपर चला गया। तो आंसर क्या आ गया? 2.303 लॉग 3p नॉट बाय 5p नॉट माइनस 2p टोटल। ये k की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये किसकी वैल्यू है? N2O5 जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो N2O5 है वो डिकम्पोज हुई है NO2 प्लस हाफ 2 में। दैट्स हाउ इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड। क्लियर आपको ये बात? इस पूरे के पूरे आप याद रखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पॉसिबल है आपको किसी भी कम्बिनेशन में। तो जिस भी कम्बिनेशन पूछा जाएगा आप ऐसे आंसर लेंगे। हम दोबारा से चेक कर लेंगे इस पॉइंट को। देखिए, हमें दे रखा है N2O5 और वो डिकम्पोज हुआ है NO2 में और ऑक्सीजन गैस में। तो T की वैल्यू क्या होगी? 2 पॉइंट, ये आपस में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, सबको मालूम है। तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रेट काइनेटिक 2.303 बाई के लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ बाय फाइनल प्रेशर। तो ये आपने लिख दिया। इसको लिखने के बाद आपके पास P टोटल आ गया। P टोटल आ गया तो वो आपने यहाँ लिख दिया। श्योर। अब आपने क्या किया? अब आपने यहाँ पर P टोटल निकाल लिया। तो P टोटल निकाल कर आपने वहाँ से x को निकाल लिया और फिर x की वैल्यू क्या की आपने यहाँ पर P नॉट x में पुट कर दी। तो आपके पास एक P नॉट माइनस एक्स जो इन फाइनल कंसंट्रेशन है, कौन सी है? जो फाइनल प्रेशर है जो आपके पास, वो यहाँ पर इक्वेशन में आ गया। ठीक है जी, क्लियर अंडरस्टूड नाउ? ओके। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? ये देखिए, ये भी हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये N2O5 डिकम्पोज हो रही है इन दो गैसेस में। तो इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर करना है आपको। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इसमें जैसे आपने P नॉट की जगह P नॉट लिखा है और P नॉट माइनस की जगह P नॉट एक्स की वैल्यू पुट की थी आपने, और ये 3 ऊपर चले गया। ठीक है, आर यू श्योर अबाउट दैट? ईजी, दैट इज टू ईजी। ओके बेटे, नाइस। देखिए अब आपको क्या बोल रहा है वो कि T हाफ निकालिए, जबकि K की वैल्यू दे रखी है 20 सेकेंड इनवर्स, 4 ईयर इनवर्स और 10 मिनट इनवर्स। सबको मालूम है T हाफ की जो वैल्यू है होती है 0.693 बाई K फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या होगा इस केस में? तो K की जो T हाफ निकालना है, K को निकालना है आपको, तो कितना देगा? 0.693 बाई T हाफ। उल्टा हो जाएगा, 0.693 बाई 20। ठीक है, ये आपके पास आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आर यू श्योर अबाउट दैट?
तो आपको टी हाफ निकालना, के दे रखा है, सॉरी हम उल्टा कर रहे हैं। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, 0.03465 सेकेंड, ठीक है। और श्योर, फिर सेकंड में क्या आएगा टी हाफ की वैल्यू, आंसर आपके पास 0.693/4 ईयर इनवर्स ये देगा 0.017325 ईयर्स। क्लियर है ना, इजी है कि नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। तीसरा आप खुद ही कर लेंगे, 10 से डिवाइड करके, इजी है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर आपको जीरो ऑर्डर के निकालनी है तो आपको इनिशियल करने के लिए भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये टाइम इनवर्स है के की वैल्यू, कुछ भी होता है ईयर्स में ज़्यादातर आपकी हाफ लाइफ होती है रेडियो एक्टिव, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। ये मैं अभी तक बताया नहीं आपको, जो रेडियो एक्टिविटी है, जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फॉलोज क्या करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ये फॉलो करता है, याद रखिए इस बात को। किसको फॉलो करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। जैसे कार्बन 14 है आपके पास, ये सबको मालूम है, कार्बन 12 और ये दो आइसोटोप्स हैं इसके। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप है क्या है, ये रेडियो एक्टिव है, क्या है ये रेडियो एक्टिव है। तो जो कार्बन 12 जो 14 है, ये इस तरह से डिसइंटीग्रेट होता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस आपको क्या बनेगा, जो कार्बन 14 है ये किस में होता है, इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो जब तक वो स्पीशीज़ या वो चीज़ जिंदा रहेगी, हमारे पेड़ हैं, हमारे पौधे हैं, सब्जियां हम खाते हैं, ठीक है, और जितने भी लिविंग और जितना कुछ भी आप लिविंग जान लेंगे, दे कंटेन्स कार्बन 14। तो आप ज़मीन से जब पुरानी हड्डियां मिलती हैं या पुराने बहुत आर्कियोलॉजिकल सर्विस कुछ सब्सटेंसेस निकालती हैं, लकड़ियों की बड़ी मूर्तियां, लकड़ी के बना हुआ सामान निकालती है, तो बता देते हैं अभी ये इतने साल पुराना है। कैसे, बाय C14 डिसइंटीग्रेशन। एक्चुअल में क्या है, जो टी हाफ है 14 के लिए, टी हाफ है फॉर कार्बन 14, वो है हमारे पास 5730 ईयर्स। कि कोई भी नेचुरल सब्सटेंस है, उस नेचुरल सब्सटेंस में जो कार्बन 14 का अमाउंट होता है, जो कार्बन 14 की एक्टिविटी होती है, वो 50% रह जाती है आफ्टर दैट मैनी ईयर। कितने हैं, 5730 ईयर्स। मान लीजिए किसी सैंपल में 1 मिलीग्राम कार्बन 14 है, तो 5730 ईयर्स बाद कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा हाफ मिलीग्राम। कितना रह जाएगा, हाफ मिलीग्राम होंगे। क्लियर नहीं क्लियर, इसको निकालने का खैर तरीका भी होता है, बता देता हूँ आपको मैं। तरीका ये होता है कि 2 पावर n जो होता है वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो n की वैल्यू कैसे होती है, टाइम गिवन बाय टी हाफ, ठीक है ना, टाइम गिवन बाय टी हाफ। मान लीजिए जैसे बोलता है टी हाफ फॉर ए सब्सटेंस A is
5 days. If initial concentration is 1 molar, what is concentration after 20 days? तो आप n निकाल लीजिए, टोटल लगता है 20 डेज, हाफ लाइफ इतनी है 5 डेज की, कितना आ गया 4, बस पुट कीजिए इसमें, तो 2 पावर 4 कितनी हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल, जो मालूम नहीं है हमें, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 2 पावर 4, कितना हो जाएगा ये 16, दैट इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, तो ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है निकालना इसको, ठीक है। आर यू श्योर अबाउट दैट? देखिए आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कार्बन जो 14 है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लिविंग सिस्टम्स में पाया जाता है। तो मान लीजिए कोई डायनासोर का अंडा मिला किसी साइंटिस्ट को ज़मीन खोद के, तो वो क्या करेगा, हल्का सा उसका एक सैंपल, हल्का सा उसका जो अपर लेयर है वो तोड़ लेंगे या उसको निकाल लेंगे, और उसमें से चेक करेंगे उसमें से कितने बीटा पार्टिकल, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि जब कार्बन 16 डिके होता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और ये नाइट्रोजन बनेगा उसका, तो ये जो डिके होता है इसको बोलते हैं बीटा डिके, ये इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, तो जो इलेक्ट्रॉन का बाहर आना है दैट इज़ कॉल्ड एज बीटा डिके। तो उसमें बीटा डिके होता है। बीटा डिके क्यों होता है कि जो हमारे पास एक न्यूट्रॉन है वो हमारे पास एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है यहाँ पे, ये असल में कहानी होती है। और ये किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो जो फ्रेश सैंपल होता है, मान लीजिए आपका कोई बाल है तो आपके सिर पे है या आपके हाथ में कहीं है, आपकी स्किन पे कहीं लगा हुआ है, तो जिंदा है, आप उसको प्लग कर लीजिए, तोड़ लीजिए, तो अब वो बाल मर गया, तो वो अभी अभी न्यूली डेड है। तो जो न्यूली डेड है उसमें एक्टिविटी जो होती है वो नियरली होती है आपका 13 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। कि जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पत्ता तोड़ा आपने कहीं पेड़ से, या कोई सब्जी काट तोड़ लिया आपने ज़मीन से, या कोई फल तो फ्रूट तोड़ लिया, या कोई आप किसी की उंगली कट गई मान लीजिए, तो जो फ्रेश सैंपल है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी का भी, वो हमें प्रोवाइड करवाएगा नियरली 13 बीटा पार्टिकल पर मिनट। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये जो उसकी एक्टिविटी है, उसका जो रेट है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो जो उसका रेट है वही उसकी एक्टिविटी है, मतलब कितने पार्टिकल पर मिनट, बीटा पार्टिकल पर मिनट वो दे रहे हैं। श्योर अबाउट दैट और नो? तो अब यहाँ पर उसने देखा कि एक सैंपल है और उस सैंपल में क्या है, अभी जो नेचुरल एक्टिविटी होती है उसका 80%, मतलब 20% डिकम्पोज हो चुके हैं और 80% बचा हुआ है। इसका मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो फाइनल 80 होगी, 20% डिकम्पोज हो चुका है कार्बन 14। आर यू श्योर? तो कभी ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है तो आप यही बोलेंगे 2.T के लिए टाइम आपको निकालना है, एज निकालनी है, तो कितना होगा 2.303 के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। जो इनिशियल है वो 100% है और जो फाइनल है वो 80% है, लिखा हुआ क्वेश्चन। और के कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है के जो होता है 2.693 बाई टी हाफ। तो आप यहाँ पर के की जगह क्या करेंगे, डी पहले कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आर यू श्योर ना? इजी है ना? दैट इज़ टू इजी। क्लियर अंडरस्टूड? तो हम इस इक्वेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको? दोबारा समझ लीजिए। कार्बन 14 का जो डिके है वो नाइट्रोजन और बीटा पार्टिकल देता है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल के आता है, याद रखिए न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो फिर कहाँ से निकल के आते हैं,
न्यूक्लियस में जो एक न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आता है उसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आएगा दैट इज़ नोन एज बीटा पार्टिकल। तो हम ये हमारे सब में होता है। जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो, जिस खाने को आप खा रहे हो, जिस टेबल पर बैठ के आप पढ़ रहे हो, वो सब डेड कार्बन है। जिस कॉटन शर्ट को आपने पहना हुआ वो भी डेड कार्बन है। तो उन सब जगह से बीटा पार्टिकल बाहर आ रहा है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। अगर आपके पास गीगर मुलर काउंटर है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप उस पर लगाकर देख सकते हैं, क्योंकि कार्बन 14 का कंसंट्रेशन बहुत स्लो होता है, नेग्लिजिबल होता है किसी सैंपल में, इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन बीटा पार्टिकल बाहर आ रहे होते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये बात आपको याद रहेगी बेटे? नाइस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टी की जो वैल्यू है वो है 2.303 के लॉग इनिशियल बाय फाइनल। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.693 बाय टी हाफ। ये ऊपर चला जाएगा। लॉग 100 बाय 80 कितना आ गया? 5/4 कितना आ गया? 2.303 इंटू टी हाफ डिवाइड बाय 0.693 टी लॉग 5/4। तो टी हाफ कितना है आपके पास? तो टी हाफ है 5730 डिवाइड बाय 0.693 log 5 माइनस log 4, log ए माइनस log बी का फॉर्मूला हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 1846 ईयर्स। log 5 वैल्यू 0.699, log 4 की वैल्यू 0.602, ठीक है। तो आंसर वही लगभग 0. ठीक है जी, 699, तो ये 0.09 के आसपास आ गया। वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। इजी, दैट इज टू इजी। क्लियरली अंडरस्टूड बेटे? आर यू श्योर? नाइस। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 30% कंप्लीट होता है इन 40 मिनट्स। तो बताइए उसका टी हाफ क्या है? सबको मालूम है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज 0.693 बाई के। तो अगर आपको के मालूम पड़ गया तो आपके पास हाफ लाइफ भी आ गई। तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। वो कह रहा है अगर 40 मिनट के अंदर अंदर जो रिएक्शन है वो 30% कंप्लीट कर जाता है, मतलब जो ए टी है कितना है ये 70, कितना है ये 70। अब अगर इनिशियल 100 है तो फाइनल 70 है। क्यों? बिकॉज 30% हैज़ बीन कम्प्लीटेड, 30% हैज़ बीन कम्प्लीटेड। क्लियरली अंडरस्टूड? तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी के की वो क्या आएगी? 2.303 टी लॉग E0/80। तो टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 40 मिनट्स। लॉग कितना आ गया? 100/, तो आंसर आ गया 2.303/40 log 10 log 7, ठीक है। तो log 10 1 होता है और log 7 की वैल्यू, ठीक है, वो आप टेबल से देख लीजिए। क्लियर? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास तो टेबल पड़ा हुआ है अभी सामने। तो व्हेन आई सॉल्व इट, तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? तो के का आंसर आ गया यहाँ पे। चेक कीजिए कैसे आया। ये वैल्यू पुट किया आपने, log 10 माइनस log 7 किया, और भाई तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 8.92 10⁻³ मिनट इनवर्स। अब आप क्या करेंगे? टी हाफ निकाल लेंगे। तो टी हाफ की वैल्यू क्या होती है?
0.693 बाई के, 0.693 बाई 8.92 ऊपर चलेगा तो 10 पावर 3 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई व्हाट 8.92। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 77 पॉइंट बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? नाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट कह रहा है। एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है, 20% कंप्लीट होता है 10 मिनट्स में, और कह रहा है कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। आपको बताना है 75 कंप्लीशन रिएक्शन कब होगा। क्लियरिंगली आपको, तो आपने कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है यहाँ पे, तो पहले आप निकालिए के, तो के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2.303 टी लॉग कितना है ए नॉट बाई ए। तो अगर ए नॉट की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 80। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 80% रिमेनिंग है अभी, तो ये रिमेनिंग कितना चाहिए तो है क्योंकि 20% कंप्लीटेड है। और कितने टाइम में हुआ है ये सब कुछ? ये हुआ है 10 मिनट्स में। तो अगर log 100/80 तो के के लिए आ गई 2.303 10 log, दोबारा से वही 5/4। ठीक है जी। इतना करने पर आपके पास जो के की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.0223 मिनट इनवर्स। आर यू श्योर अबाउट दैट? किसकी वैल्यू है ये? के की वैल्यू। तो पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब सेकेंड है कैलकुलेट द टाइम फॉर 75%। अगर 75% कंप्लीट हो गया तो कितना रह गया? तो आंसर है 25। ठीक है नहीं? वैसे भी अगर आपको, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको कि जो टी हाफ है वो कितना हो जाएगा 0.69/3 के, और टी 75% क्या होता है 2 टाइम्स टी हाफ। क्लियरिंगली आपको ये बात श्योर? ठीक है बेटे। तो हमारे पास आंसर क्या है, तो टी हाफ पता नहीं, तो टी इंटू 0.69/k। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में मालूम होना चाहिए आपको, वैसे मालूम ही है, मैंने डेरिवेशन करवा रखा है आपको। जिससे अपने 2 इंटू कितना है यहाँ पे 0.693, के की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, चेक कीजिए के की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है 0.0223। आर यू श्योर? चेक कीजिए ध्यान से, ये वैल्यू है 0.0223। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में आंसर है 62.18 मिनट। कितना आएगा 62.18 मिनट। दैट इज व्हाट, दैट इज दी। ठीक है बेटे, आर यू श्योर? बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड एबल टू मेमोराइज दैट। ये मैंने जो डेरिवेशंस हैं लास्ट क्लास में किए हुए हैं, आप उसको पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आर यू श्योर? नाइस। देखिए अब हम सीख रहे हैं रेट लॉ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर के हैं। मतलब जैसे मान लीजिए जो ए रिएक्टेड है ट्रांसफॉर्म इनटू बी हो रहा है, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में फर्स्ट ऑर्डर है। तो मान लीजिए
इनिशियल कंसंट्रेशन ए की ए मोल पर लीटर है, बी की 0 है, ठीक है। तो अगर ए में से एक्स मोल डिसअपीयर होंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पर एक्स मोल अपीयर होंगे, श्योर। तो जो रेट होगा वो क्या होगा, रेट यहाँ तो होगा माइनस डी ए बाई डी टी, और यहाँ होगा डी बी बाई डी टी। डी बी की जगह आप डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो डी एक्स बाई डी टी आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो रेट होगा वो क्या होगा, वो होगा रेट फॉरवर्ड माइनस रेट बैकवर्ड। जबकि आप अब तक ये नहीं लिखा, किसी भी एक्सप्रेशन में ये नहीं लिखा आपने, क्योंकि उसमें क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था तो आप रेट फॉरवर्ड लिखते थे बस। क्लियर आपको ये बात। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रेट बैकवर्ड भी लिख रहे हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आर यू ओके विद द सिचुएशन नाउ। तो रेट फॉरवर्ड क्या है, तो रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे K1 ए माइनस एक्स जो कंसंट्रेशन है वो, और बैकवर्ड क्या है K2 एक्स, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम सबको मालूम है रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। तो अगर रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट, ये दोनों रेट फॉरवर्ड इक्वल टू रेट बैकवर्ड है, तो ये डी एक्स बाई डी टी 0 हो जाएगा। दोनों क्या हो गया, सो क्या होगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0। श्योर अबाउट दैट ना। तो आप इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो जब आप पुट करेंगे इसको डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0 तो क्या आंसर बनेगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा कि जब ये 0 है तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम एक्स इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे K1 ए माइनस एक्स ई माइनस K2 एक्स ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स ई कितना आ गया, एक्स ई आ गया यहाँ पे। तो आंसर आ गया K1 ए माइनस एक्स ई इज इक्वल टू K2 एक्स ई। अब K1 को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, K1 ए माइनस K1 एक्स ई और ये K2 एक्स ई, श्योर। अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास दो, अब एक तो ये आ जाएगा आपके पास K2 की वैल्यू, यहाँ से K2 की वैल्यू क्या होगा K1 ए माइनस एक्स ई बाई एक्स ई, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा चेक करते हैं, तो ये K2 की वैल्यू होगी। दूसरा आ सकता है आपके पास K1 ए, अब ये उधर चला जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे K1 एक्स ई प्लस K2 एक्स ई। तो ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। तो हम पहले तरीके में क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले गए फर्स्ट में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आर यू श्योर, क्लियर। तो अब इसमें से एक्स ई कॉमन बार आ गया तो कितना आ जाएगा K1 प्लस कितना आ जाएगा K1 प्लस K2, श्योर अबाउट दैट। तो ये होगा K1 ए, तो एक्स ई की वैल्यू क्या आ गई K1 ए बाई व्हाट, K1 ए बाई K1 प्लस K2। किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है एक्स ई की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये एक्स ई की। इसको आप इसको ऐसे कीजिए, आप दोबारा से इसको देखते हैं, इसको पाथ ए मान लीजिए, इसको पाथ बी मान लीजिए, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2,
एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। अब ये जो पुट करेंगे, पुट 3 in 1, ये जो K2 की वैल्यू है यहाँ से आपने निकाली है, पाथ ए से ये वैल्यू आई है, पाथ बी से ये वैल्यू आई है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, आप समझ जाएंगे, समझ गए मेरे ख्याल से। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से। ए पाथ में क्या किया गया है, इसको इधर ले गए हम, इसको उठा के इधर ले गए हैं। ठीक है, और एक्स की कॉमन बाहर निकाल के एक क्यूब। ठीक है, और यू श्योर अबाउट दैट? नाइस। और बी पाथ में क्या किया है, इसको सिंपली डिवाइड कर दिया गया, जो ये एक्स ही है, इसको सिंपली यहाँ डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और उसमें से K1 को कॉमन बाहर ले लिया गया। तो पुट 3 in 1, ये 3 की वैल्यू को 1 में पुट कीजिए। तो पहले हम 1 को दोबारा लिखेंगे, क्या आंसर है 1 का, dx बाई dt इक्वल टू K1a माइनस एक्स माइनस K2 x। अब ये जो K2 है, ये जो वैल्यू K2 यहाँ पर पुट करेंगे आप, तो K2 की जगह वैल्यू पुट कीजिए आप। तो वैल्यू पुट करके क्या आ गया यहाँ पे, K1 a माइनस एक्स ई बाई एक्स ई इंटू एक्स। ये किसकी वैल्यू है, ये K2 की वैल्यू है, चेक कर लेंगे आप लोग। ये K2 a माइनस एक्स ई बाई एक्स ई, K1 a x1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा K1a, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा K1a, ये देगा माइनस K1x। आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये तीनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, K1a x बाई एक्स ई। क्लियर है। फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस K1 एक्स ई एक्स बाई एक्स ई। तो एक्स ई से एक्स ई कट गया, क्या आंसर आ गया, K1a माइनस K1x माइनस K1a x बाई एक्स ई प्लस K1x, बिकॉज ये कट गया। तो ये अब क्या होगा यहाँ पर, इस पॉइंट से देखिए, यहाँ पर ये जो ये और ये पोर्शन है इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाले। तो क्या रह गया, K1a माइनस K1a बाई एक्स ई। K1a दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा। ये तो dx बाई dt है। ठीक है, क्लियर। आंसर आ गया dx बाई dt इक्वल टू K1a एक्स ई माइनस एक्स बाई एक्स ई। तो आंसर आ गया एक्स ई बाई, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, इक्वल टू K1a dt। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? अब हमने करना क्या है, अब ये एक्स ई, तो यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में। तो अब चेक कीजिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, -1। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स ई लॉग एक्स ई माइनस एक्स इक्वल टू K1a t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ये हमारे पास कितना आ गया, ये नंबर 5 आ गया। अब सबको मालूम है एट t इक्वल टू 0 एक्स ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स सी लॉग एक्स सी इक्वल टू K1a 0 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी
की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर, अंडरस्टूड? चेक कर रही है आपने, ध्यान चेक कीजिए, चेक कीजिए। ये जो वैल्यू है, ये जो जिस पे मैं पेन लगा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये देखिए ये जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है यहाँ पे, दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी क्योंकि x 0 है। t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि t 0 है, t 0 है, x 0 है। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो x 0 होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आर यू ओके विद दैट? श्योर? तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, क्या आई है, इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, वो वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस एक्सी लॉग एक्सी। ठीक है जी, चेक कीजिए। इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, इस वैल्यू को हम मान लेंगे 6 नंबर, क्या मान लेंगे 6। तो बोलेंगे पुट 6 इन 5। तो पहले 5 ले लेते हैं, 5 की वैल्यू क्या थी, चेक कीजिए, ये 5 की वैल्यू थी, माइनस एक्सी लॉग एक्सी माइनस एक्स इक्वल टू K180 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी ए के लिए है माइनस एक्स ई लॉग एक्स सी। अब ये जो माइनस से इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, एक्स सी लॉग एक्स सी माइनस एक्स सी लॉग एक्स सी माइनस एक्स इक्वल टू K180। ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू कॉमन बाहर आ जाएगी एक्स की, ये हो गया लॉग एक्स सी माइनस लॉग एक्स सी माइनस एक्स K180। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ए बाय बी। चेक कर लीजिए ध्यान से इसको, तो आंसर आ गया लॉग ए बाय लॉग बी इक्वल टू K180। ठीक है जी। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप चेक करो K1 की जो वैल्यू है, K1A जो है किसके इक्वल है। ठीक है, आप चेक करेंगे ध्यान से, तो K1A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, K1A की वैल्यू है यहाँ पे एक्स ई भी लगा हुआ है, खैर ओके चेक कीजिए, एक्स की तो बाहर है ही खैर। तो जहाँ पे एक्स ई है तो वहाँ पर आप नंबर 2 पे जाइए, देखिए ये वैल्यू, ठीक है, आप नंबर 7 हो जाइए तो, ठीक है, तो मैं आपको 3 स्टेप पिछले जा रहा हूँ। ठीक है, 6 5, ठीक है जी, पता लग गया आपको। और ये देखिए ये वैल्यू, ये एक्स ई की वैल्यू क्या है नंबर 2 पे, ये देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, K1A बाय K1 प्लस K2। श्योर, तो एक्स की वैल्यू है K1A बाय K1 प्लस K2, ये देखिए नंबर 2 इक्वेशन है। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी K1A अपॉन K1 प्लस K2 लॉग एक्स ई बाय एक्स ई माइनस एक्स इक्वल टू K1A T। ये कैंसिल आउट हो गया, K1A से ये K1A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 1 बाय K1 प्लस K2 लॉग एक्स सी माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो इसको रिपीट कर लीजिए आप, सॉरी ये लॉग नेचुरल है, तो अब आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2 ये लॉग नेचुरल को मैंने टेबल लॉग में चेंज कर दिया, K1 बाय K2 लॉग
एक्स सी माइनस एक्स। तो ये एक्सप्रेशन किसका है, टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो एक्स ई क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, और एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। तो दोनों ही कंसंट्रेशन बी की। आर यू श्योर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिए ये कब एप्लीकेबल है, जब कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बी कितना है, 0 है। कितना है, 0। आर यू श्योर, वेरी मच श्योर।